السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ میٹرو ریل پروجیکٹ اپریل 2017 تک مکمل کر لینے کی ہدایت۔ میٹرو ریل عہدیداروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ RTC کے ہڑتالی ملازمین کو ہائی کورٹ کی سرزنش۔ ہڑتال سے متعلق چہارشنبے تک فیصلہ لے لینے کی ہدایت۔ اسٹریٹ فائٹ ہلاکت کے ملزم نوجوانوں کے خلاف قتل کا مقدمہ۔ جرم چھپانے والے سرپرستوں کے خلاف بھی کارروائی ممکن۔ اور درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا کی وقف اراضی کے تحفظ کے اقدامات۔ مجلسی ارکان مقننہ کے ساتھ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ آفیسرز کا دورہ۔ اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے میٹرو ریل پروجیکٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پروجیکٹ کو اپریل 2017 تک مکمل کر لیں۔ سیکریٹریٹ میں منگل کو وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کا میٹرو ریل عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مقررہ وقت پر پروجیکٹ تکمیل کرتے ہوئے اسے عوام کے لیے شروع کر دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے سکندرآباد اور نامپلی ریلوے اسٹیشن کے علاوہ املی بن اور جوبلی بس اسٹیشن آنے والے مسافرین کے لیے بھی میٹرو ریل خدمات کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے فلک نما اور رائے دورگم سے ایئرپورٹ تک میٹرو ریل روٹ فراہم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے LB نگر سے چندان گٹا تک میٹرو ریل روٹ کا جائزہ لینے کا بھی عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو ریل عہدیداروں کو پولیس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے سیکورٹی انتظامات کے لیے بھی مؤثر اقدامات کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ریاستی وزراء، چیف سیکریٹری راجیو شرما، کمشنر پولیس مہندر ریڈی اور میٹرو ریل کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ شہر کے عوامی نمائندوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جاریہ مہینے کی 14 تاریخ کو اجلاس منعقد کرنے والے ہیں۔ مجوزہ اجلاس کے سلسلے میں مرکزی مملکتی وزیر بنڈارو دتاتریہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سوچھ تلنگانہ کے علاوہ حیدرآباد کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مختلف محکموں کے عہدیدار بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سال 2015 کے عازمین حج کو درپیش مسائل کی یکسوئی اور تلنگانہ کے کوٹے میں اضافے کے لیے مرکزی وزیر خارجہ سے نمائندگی کی۔ بیرسٹر اویسی نے سشما سوراج کو بتایا کہ ایئر انڈیا کی فلائٹ سے حاجیوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور حیدرآباد سے روانہ ہونے والے حاجیوں کے لیے جو رہائشی عمارت کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں پکوان کی سہولت نہیں ہے۔ انہوں نے سفری بیگز کے لیے علیحدہ رقومات حاصل کرنے پر بھی سوالات کیے۔ بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ کے عازمین کے کوٹے میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ نے بیرسٹر اویسی کو تیقن دیا کہ حیدرآباد سے روانہ ہونے والے تلنگانہ، آندھرا اور کرناٹک کے عازمین کو سعودی ایئر لائنز سے روانہ کیا جائے گا اور واپسی بھی اسی طریقے سے عمل میں آئے گی۔ سشما سوراج نے رہائشی عمارت میں پکوان کی سہولتیں فراہم کروانے یا پھر متبادل انتظامات کروانے کا بھی تیقن دیا۔ وزیر خارجہ نے تاہم بیرسٹر اویسی کو بتایا کہ جاریہ سال کوٹے میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ آئندہ سال سے تلنگانہ کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے سفری بیگز کے مسئلے پر کہا کہ سعودی حکومت نے یکساں بیگز کا لزوم عائد کیا ہے، اسی لیے اضافی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس کا حکومت ہند سے کوئی تعلق نہیں۔ حیدرآباد ہائی کورٹ نے RTC کے ہڑتالی ملازمین کے موقف پر یونین کی سرزنش کی ہے۔ منگل کے دن مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے سخت الفاظ میں ملازمین تنظیموں سے سوال کیا کہ آخر ہڑتال ختم کی جائے گی یا نہیں۔ عدالت نے پہلے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ جواب دیا جائے۔ عدالت کی سرزنش کے بعد RTC ملازمین کی تنظیموں کے نمائندوں کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، لیکن بعد میں عدالت نے ہدایت دی کہ چہارشنبے کی صبح 10 بجے تک ہڑتال کو ختم کرنے سے متعلق عدالت کو واقف کروایا جائے۔
ملازمین تنظیموں نے ہڑتال کے خاتمے سے متعلق فیصلہ لینے کے لیے 2 دن کی مہلت طلب کی تھی، لیکن عدالت نے کہا کہ ہڑتال سے تاحال کارپوریشن کو کافی نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا مزید وقت نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ چہارشنبے کی صبح تک ہڑتال کے خاتمے سے متعلق عدالت کو واقف کروایا جائے، بصورت دیگر عدالت اس سلسلے میں کارروائی کرے گی۔ بعد میں عدالت نے مقدمے کی سماعت چہارشنبے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ 16 مئی سے سوچھ حیدرآباد مہم کا آغاز ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس یادو نے کہا کہ یہ پروگرام 20 مئی تک جاری رہے گا۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ اس پروگرام میں ریاستی گورنر نرسمہن، وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، وزراء اور عہدیدار حصہ لیں گے۔ انہوں نے سیاسی خطوط سے بالاتر ہو کر تمام قائدین سے اپیل کی کہ وہ پروگرام میں حصہ لیں۔ سرینیواس یادو نے کہا کہ شہر میں پینے کے پانی، ڈرینیج اور ٹریفک کے علاوہ کئی مسائل پائے جاتے ہیں اور تمام کو مل کر مسائل کی یکسوئی کے لیے آگے آنا چاہیے۔ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సిటీ దీని ఇంకా అభివృద్ధి పందాలు ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి। మనకు హైదరాబాద్ సిటీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు 5 లక్షల జనాభాకు సరిపడేటువంటి వసతులు గతంలో ఉండే, ఈరోజు హైదరాబాద్ దినదినాభివృద్ధి చెంది సుమారు 625 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్గా విస్తరించడం, 1 కోటి జనాభా మరి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం। అయితే కనీస వసతుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకు అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే। ఒకటి డ్రైనేజీ కానివ్వండి, మంచినీటి విషయంలో కానివ్వండి, శానిటేషన్ విషయంలో కానివ్వండి, పార్కులు కానివ్వండి, అయితే రకరకాల సమస్యల మధ్యన IDH कॉलोनी में गरीबों के लिए बनाए जाने वाले मकानात के तामीरी कामों का रियासती ओहदेदारों ने जायजा लिया। ओहदेदारों ने गुत्तेदारों से कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि मकानात की तामीर में कोताही न बरती जाए और मुक़र्ररा वक्त में इसकी तामीर मुकम्मल कर ली जाए। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने मंगल के दिन वज़ारत फ़ाइनेंस के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। वज़ीर फ़ाइनेंस ने डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी, पे एंड अकाउंट्स और डायरेक्टर ऑफ वर्क अकाउंट के अहदेदारों से उनके शोबों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी के रियासत के दौरे के खिलाफ TRS और दीगर कायदीन की तनकीदों को मुज़हिका खैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू और जी वेंकटरमना ने कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन राहुल गांधी के मुजव्वज़ा दौरे से बौखला उठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से राहुल गांधी का इंतज़ार किया जा रहा है और उनके जोश खरोश को देख कर TRS कायदीन परेशान हो चुके हैं। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा कि TRS हुकूमत ने किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे पर तनकीदें करने वालों को पहले अपना मुहासिबा करना चाहिए। వారి రాకను ప్రజాస్వామ్యవాదులు, రైతులు స్వాగతిస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మరి వారు ఎందుకు వారి రాకను అవగాహన లేకుండా వ్యతిరేకిస్తుందో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। నిర్మల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు, ప్రస్తుత మంత్రివర్యులు రాహుల్ గాంధీ గారి యాత్రను ఒక విహార యాత్రని ఒక అవగాహనలతో లేకుండా చేస్తున్నారని అడుగుతా అని మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉంది వారి। ఎందుకంటే వారి రాజకీయ జీవితంలో 2004 ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి రైతులు దీన స్థితిలో ఆనాడు రైతుల ఆత్మహత్య ఉంటే दरगाह हज़रत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और हिसारबंदी के ताल्लुक़ से सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील, वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर ने दरगाह का मुआयना किया।
तफसीली मुआयने के बाद जिम्मेदारों ने बताया कि इस 323 एकड़ वक्फ अराजी के बाज़ हिस्सों पर कब्ज़ों की कोशिशें की जा रही हैं और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तवज्जो दहानी पर हुकूमत ने इस ज़िम्न में इक़दामात का आगाज़ किया है। इस दौरे में महकमे अक़लियती बहबूद और वक्फ बोर्ड के दीगर जिम्मेदारों के अलावा मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी भी शामिल थे। अराज़ी जो हकीम शाह बाबा दरगाह के तहत 323 एकड़ वक्फ की अराज़ी है और इसका हाल ही में हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो असम्बली के अंदर पिछले इजलास में इस मसले को उठाए थे और काफ़ी मुबाहिस होने के बाद, काफ़ी दलाइल पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर इस बात से एग्री हुए थे इस बात के उसके ऊपर हाउस कमेटी बनाई जाए और उसमें तफसीली जो है इस पे वक्फ लैंड्स के ऊपर इंक्वायरी हो और किस तरीके से वक्फ जायदादों को नाजायज़ कब्जे किए गए हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इस कमेटी का मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जायज़ा लिया जाएगा। और इसी के तहत आज जहाँ पे कारवान और गोशा महल हल्कों के जो हमने नुमाइंदगी की थी कि वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पे नौजवान ख़वातीन और लड़कों को रोज़गार के ज़रिए फ़राहम हो, कुछ काम ऐसे सीखे, स्किल डेवलपमेंट हो जिसके तहत इनको काम मिले और रोज़गार मिले। तो ये दोनों चीज़ों के तहत यहाँ पर तफसीली दौरा किया गया। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के साथ गोलकुंडा बाला हिसार आशुर खाने की वक्फ अराज़ी का दौरा किया। जलालुद्दीन अकबर ने बताया कि स्लम इलाक़ों और गरीब बस्तियों के तलबा और बेरोज़गार अफराद के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मराकज़ कायम करने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने नुमाइंदगी की है, जिसके बाद इस मकाम का मुआयना किया गया और बहुत जल्द इस सिलसिले में अमली इक़दामात किए जाएंगे। MLA कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और MLC साहब अल्ताफ़ रज़वी साहब के साथ में कारवान असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई स्लम एरियाज़ का दौरा किया है हमने, क्योंकि हमारे माइनॉरिटीज़ में अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और पार्शियली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड का काफ़ी बड़ी तादाद में है। उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि गवर्नमेंट नया स्टेट बनने के बाद में माइनॉरिटीज़ पे काफ़ी तवज्जो दी जा रही है और माइनॉरिटीज़ के फलाह और बहबूदी के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी काफ़ी तरजीह दी जा रही है। तो ख़ास तौर पे इन स्लम एरियाज़ में जहाँ पे ख़ास तौर पे लड़कियाँ दूर तक जाके ट्रेनिंग हासिल करने में दुश्वारी हो रही है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ के MLA साहब और MLC साहब ने हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन किया है कि उनके एरियाज़ में आके ऐसे लड़की जो बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते, उनके लिए वहीं पे इन सिटू ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए वो लोग ख्वाहिश किए हैं। तो वो लोग बहुत आगे बढ़ के हमारे वो लोग यानी प्लेस भी बताने के लिए वो लोग मदद कर रहे हैं सुबह से। तो वो चाहते हैं कि हमारे MLA साहब उनके एरियाज़ में कई जगह ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो और यहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज़ के जो अनएम्प्लॉयड लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट हो। DCP साउथ जोन V सत्यनारायणा ने स्ट्रीट फाइट हलाकत वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए नौजवानों के सरपरस्तों को तलब किया और उनकी काउंसलिंग की। DCP ने सरपरस्तों को ताकीद की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें बुरी सोहबतों से दूर रहने का मशवरा दें। मीडिया से बात करते हुए V सत्यनारायणा ने बताया कि नबील की हलाकत के वाक़े के सिलसिले में कत्ल और जुर्म को छुपाने के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुर्म से ज़्यादा संगीन बात जुर्म का छुपाना है। DCP ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि सरपरस्तों ने अपने बच्चों के जुर्म को छुपाया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
हज कमेटी के तवस्सुत से अज़्म हज करने वालों के साथ जाने के लिए ऐसे 14 सरकारी मुलाजिमीन का इंतखाब कुरानंदाजी के लिए अमल में आया, जिनको आम तौर पर खादिमुल हुज्जाज कहा जाता है। बताया गया है कि खादिमुल हुज्जाज के लिए 158 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिनमें से 142 को क़ुरे के लिए अहल करार दिया गया था। हस्ब रिवायत इलाका वारियत का मुजाहरा करते हुए आंध्रा से 3, रायलसीमा से 4, तेलंगाना से 4 और हैदराबाद से 3 सरकारी मुलाजिमीन को मुंतखब किया गया। पूरा के जरिए मुंतखब हुए 14 खादिमुल हुज्जाज हैं। आंध्रा और रायलसीमा ट्विन सिटीज़ मिलाकर उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उन तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज़मीन की खिदमत करें। खादिमुल हुज्जाज के बारे में बहुत सारे लोगों को शिकायतें थी। लास्ट टाइम मुझसे पहले भी शिकायत आ चुकी थी, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम उनको एक सिम नंबर देके वो सारे नंबर जो है आदमीन को हम लोग दे दिए थे खादिमुल हुज्जाज के, और बिल्डिंग पर पोस्टर लगा दिया गया था। तो इस मरतबा भी वो सारे उमूर करने की इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बाजार रूपलाल के इलाके का पैदल दौरा करके सड़क की कुशादगी के मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि शाह गौस होटल के रूबरू बहुत जल्द सड़क के तोसी काम का आगाज़ होगा, जबकि होटल के अक़बी इलाके में बाज़ एतराज़ात के पेश नज़र तफसीलात से सदर मजलिस को वाकिफ़ करवाया गया है और उनकी हिदायत के बाद ही फ़ैसला लिया जाएगा। गंगानगर याकुतपुरे में आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीज़ों का मुफ्त मुआयना किया और उनमें दवाएं भी तकसीम की गईं। इस मौके पर साबिक़ रुकन बल्दिया शकील महमूद भी मौजूद थे। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के अरकान असम्बली ने मंगल के दिन सेक्रेटेरिएट में सी ब्लॉक के पास रूबरू एहतजाजी धरना दिया। बीजेपी अरकान असम्बली का कहना था कि स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के अलावा दीगर उमूर पर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी अरकान ने बताया कि अवामी मसाइल पर वो वज़ीर आला से मुलाकात के लिए सेक्रेटेरिएट आए थे, ताहम 11 बजे तक भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट नहीं पहुँचे। बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर लक्ष्मण का कहना था कि हैदराबाद के अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ हुकूमत जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए और उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला भी शहर के मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने बीजेपी अरकान असम्बली को तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुंबई में मुनक़िदा मिक्स मार्शल आर्ट्स चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाली तेलंगाना टीम के अरकान ने दारुस्सलाम में मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और मौज़म खान से मुलाकात की। मजलिस कायदीन ने इनामात हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सूद की रकम की अदायगी के लिए फाइनेंसर्स के दबाव और हरासानी से तंग आकर एक ताजिर खुदकुश नोट छोड़कर लापता हो गया। ये वाक़या सिकंदराबाद के तुकाराम गेट इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक सिकंदराबाद मोड़ा मार्केट में नर्सिंग कलेक्शन के नाम से दुकान चलाने वाले नर्सिंग नामी ताजिर ने सूद पर फाइनेंसर से 14 लाख रुपए की रकम हासिल की थी। ताहम सूद की रकम अदा न करने पर नर्सिंग को फाइनेंसर्स की जानिब से तंग किया जा रहा था। नर्सिंग की दुकान में मौजूद CCTV कैमरे में भी बाज़ अफराद की जानिब से नर्सिंग को ज़दवकूब किए जाने का मंजर कैद हुआ है। बताया गया है कि 6 मई को नर्सिंग खुदकुश नोट छोड़कर लापता हो गया। शौहर के घर न लौटने पर उनकी बीवी हेमा बिंदु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से वाक़े की तहकीकात कर रही है।
مغلپورے کے رہنے والے 35 سالہ محمد رشید یکم مئی سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ چٹ فنڈ کی رقم لینے کے لیے گھر سے نکلے تھے، واپس نہیں پہنچے۔ کسی کو نظر آ جائیں تو درخواست کی گئی ہے کہ مغلپورہ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ میٹرو ریل پروجیکٹ اپریل 2017 تک مکمل کر لینے کی ہدایت۔ میٹرو ریل عہدیداروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ آر ٹی سی کے ہڑتالی ملازمین کو ہائی کورٹ کی سرزنش۔ ہڑتال سے متعلق چہارشنبے تک فیصلہ لینے کی ہدایت۔ اسٹریٹ فائٹ ہلاکت کے ملزم نوجوانوں کے خلاف قتل کا مقدمہ۔ جرم چھپانے والے سرپرستوں کے خلاف بھی کارروائی ممکن۔ اور درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا کی وقف اراضی کے تحفظ کے اقدامات۔ مجلسی ارکان مقننہ کے ساتھ اقلیتی بہبود اور وقف بورڈ آفیسرز کا دورہ۔ اور اب میں غوث علی سعید آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔